Hi everyone. So in this video I'm not going to do any kit question. Just I'm going to explain the cell system which will be helpful for you guys while doing the control deficiency and control recommendation type question, or you can say like key control or taste of control type question. So before starting this video, let's have my introduction. So it's me, your Manu Issue, and welcome back to my YouTube channel Manu Issue ACCA classes. So this video only I'm going to I'm explain cell system which is gonna be useful for you guys, I hope. So let's write down cell system. Okay, so there are few stages explained in the book regarding the cell system and their respective objective, right? So let's note down those steps. The first one is order, then after that good dispatch, then invoicing, recording, then cash. Okay, so these are the stages of the sales system. The first we have to do ordering. We have to take a order from the customer, then dispatch the good, then invoicing, then recording, then the cash receipt. So now I'm going to explain the each step with their respective objective and control procedure that we have to take. Okay, so let's make a two column. One is like objectives and procedure. Or we can say recommendation. Okay. Okay. So first of all, in the sales system, what we will do, we will take a order from the customer, right? So we will take order from the customer, and the customer might be the new customer or existing customer, right? So what we have to do is we have to assess their credit limit. In case of new customer, we should be more conscious regarding giving the we should be careful in giving the credit limit to the new customer, because we don't know the customer वो कैसा है क्या है वो पे करेगा कि नहीं, we don't know about that, right? But in existing customer, if the credit limit is exceed, then we have to think whether we should give those credit limit to customer. We should extend the credit limit to those customer or not. Okay, so first of all we have to take a order from the customer, and after the order has been received, what we have to do is बी श्योर दैट ऑर्डर शुड बी इन रिटर्न. ठीक है, अगर मान लो टेलीफोन पे ले रहे हो, नोट डाउन नहीं कर रहे हो, देर माइट बी मिस्टेक कि लाइक आप सारे ऑर्डर कस्टमर का रिकॉर्ड ना कर पाओ, राइट? सो रिकमेंडेशन में आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि इट शुड बी इन रिटर्न. इफ मान लो कि सिनारियो में एक्सप्लेन किया है कि ऑर्डर मिस हो गया यहाँ पे, तो इसके लिए आप रिकमेंड कर सकते हो लाइक कि ऑर्डर शुड बी इन रिटर्न ऐसा करके. तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्डर के स्टेज में कि जो भी पहले हम लोग ऑर्डर लेके आएंगे कस्टमर से. आफ्टर द ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव, बी इंश्योर इट हैज़ बीन करेक्टली रिटर्न. वो करेक्टली लिखा हुआ है, कितना कस्टमर को क्वांटिटी चाहिए, कितना गुड्स चाहिए, सब अच्छे से लिखा हुआ है. उसके बाद हम लोग असेस करेंगे वेदर कस्टमर इज क्रेडिट वी शुड असेस द क्रेडिट वर्दनेस ऑफ द कस्टमर. ठीक है, उसके बाद क्रेडिट लिमिट भी उनका चेक करेंगे. ठीक है, उसके बाद जो भी ऑर्डर आया उसको प्रोसेस करेंगे. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कस्टमर से ऑर्डर रिसीव होने के बाद इट शुड बी राइज्ड एक्यूरेटली, और इट शुड ऑल ऑर्डर शुड बी प्रोसेस्ड. ठीक है, एंड कस्टमर शुड बी क्रेडिट वर्दीनेस. ये सब चीज़ हमारा ऑब्जेक्टिव होता है. अब रिकमेंडेशन में लाइक यू कैन राइट
ऑल ऑर्डर शुड बी इन राइटिंग फ्रॉम द कस्टमर और कन्फर्म विद द कस्टमर, हाँ कि यही यही ऑर्डर आपको चाहिए, यही सब आप सामान आपको चाहिए करके। और उसके बाद कस्टमर का ऑल कस्टमर अंडर गो क्रेडिट चेक्स, लाइक आपका एग्जिस्टिंग हो या न्यू हो सारे का क्रेडिट चेक करना ज़रूरी है। इन केस ऑफ न्यू कस्टमर आपको तो और ज़्यादा करना चाहिए। इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर इफ़ दे आर आस्किंग फॉर टू इंक्रीज देयर क्रेडिट लिमिट, बी श्योर उसका क्रेडिट लिमिट आप उसको चेक करो, ऐसे नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट लिमिट भी चेक करने, ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले चेक करना है। क्रेडिट लिमिट शुड बी चेक बिफोर एक्सेप्टिंग एन ऑर्डर, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको इन्वेंट्री भी चेक करना है, वेदर दैट द कंपनी हैव ए सफिशिएंट इन्वेंट्री टू फुलफिल दोज ऑर्डर। ये आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले चेक करना है। तो मैं यहाँ पे इतने सारे मैंने पॉइंट्स बोला, आई विल राइट ए फ्यू पॉइंट्स सो दैट आपको लगे कि हाँ कुछ मैंने पॉइंट बोला है, सो इट विल बी हेल्पफुल। सो मैं एक दो लिखती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक सेकेंड है, all order should be raised accurately, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे बुक में लिखा है वो भी मेंशन कर सकते हैं। ऑल ऑर्डर शुड बी प्रोसेस्ड, या फिर आर प्रोसेस्ड बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। अब प्रोसीजर में आप लिख सकते हो लाइक ऑल ऑर्डर शुड बी इन राइटिंग, और अगेन कंफर्म कर लो कस्टमर से, कंफर्म विथ कस्टमर्स, ओके। सो ये हो सकता है, या फिर और क्या लिख सकते हो आप, जस्ट वेट, इसका स्पेलिंग गलत हो गया। ओके, नाउ व्हाट यू कैन राइट, ओके, हाँ, इन्वेंट्री चेक should be done prior to accepting an order, okay। so this is all about the ordering stage, okay। मैंने सिर्फ 2 पॉइंट लिखा, हालांकि लिख सकते हैं, मैंने बहुत सारा पॉइंट एक्सप्लेन किया, यू कैन राइट, बट मैं यहाँ पे सिर्फ 2 करके एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ अब ऑर्डर तो रिसीव कर लिया, प्रोसेस भी कर लिया, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू डिस्पैच दोज गुड्स टू द कस्टमर। आपने इन्वेंट्री, बी श्योर कि आपने इन्वेंट्री पहले ही चेक कर लिया है, एंड बी श्योर कि आप यू हैव चेक द इन्वेंट्री प्रायर टू एक्सेप्टिंग द ऑर्डर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे वॉट एवर द गुड्स वी आर हैविंग इन द इन्वेंट्री, ठीक है, ओके। सो नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है कि नाउ whatever the order you have taken all should be dispatched, ये भी तो हो सकता है। और आप ये भी लिख सकते हो कि जो भी हम लोग ने ऑर्डर गुड्स का रिसीव किया है वही सिर्फ डिस्पैच हो, रॉन्ग गुड्स ना भेज दे कस्टमर को, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और यह भी जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑर्डर शुड बी डिस्पैच टू ओनली दोज कस्टमर हु विल पे इन प्रॉम्प्टली इन फुल इन प्रॉम्प्टली, है कि नहीं। तो इसके लिए इससे पहले हमको क्रेडिट वर्दनेस चेक करेंगे, तभी तो पता चलेगा वो कस्टमर पे करेगा कि नहीं। तो वो चेक करने के बाद ही हम लोग ऑर्डर डिस्पैच करेंगे। सो ऑर्डर डिस्पैच शुड बी ऑर्डर डिस्पैच टू ओनली दोज कस्टमर जो पे कर दे फुल या प्रॉम्प्टली में, है ना, ओके। इसके बाद अब इसका कंट्रोल प्रोसीजर की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, ऑर्डर शुड बी सिक्वेंसली नंबर्ड। आपको ऐसा कहीं दिखे कि लाइक सीक्वेंस नंबर नहीं है ऑर्डर फॉर्म में, या फिर वो लोग नंबरिंग कर ही नहीं रहे हैं, उस केस में क्या होगा, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देयर माइट बी चांसेस कि कोई ऑर्डर अनफुलफिल रह जाए, और उससे क्या होगा, फिर कस्टमर उदास हो जाएगा, वो आपके दोबारा आपके दुकान से आई मीन बिजनेस से ऑर्गेनाइजेशन से सामान ही नहीं खरीदेगा, और ये हो सकता है लॉस ऑफ कस्टमर गुडविल।
तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी लाइक ऑर्डर है दैट शुड बी सिक्वेंसली नंबर टू इंश्योर नॉन ऑफ द ऑर्डर आर मिसिंग, ये आप लिख सकते हो। और या फिर जो कस्टमर ने गुड्स ऑर्डर किया है इंश्योर करो दैट गुड्स ओनली शुड बी मतलब डिस्पैच हो कस्टमर को, रॉन्ग गुड्स नहीं भेजना है हम लोग को, ठीक है। और जो भी हम लोग गुड डिस्पैच करें दैट शुड बी ऑथराइज बाय ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। और एविडेंस भी होना चाहिए एज ए सिग्नेचर, ये भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब ये दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब हम लोग गुड डिस्पैच किए कस्टमर के, वी विल ऑल्सो सेंड ए गुड डिस्पैच नोट GDN, इंश्योर उसका सफिशेंट कॉपी है। जैसे कि 4 कॉपी प्रिपेयर किया, एक कस्टमर के पास गया एंड एक सेल्स डिपार्टमेंट के पास, थर्ड वन विद फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड फोर्थ वन विद योर वेयर हाउस डिपार्टमेंट। तो इंश्योर करो कि आप गुड डिस्पैच नोट पे कस्टमर का साइन ले लो, उससे क्या होगा कस्टमर डिनाई नहीं करेगा उसने गुड रिसीव नहीं किया। मान लो साइन नहीं लिया तो उससे क्या होगा कस्टमर बोल देगा मैंने गुड तो रिसीव ही नहीं किया, तो उस केस में आपका लॉस हो सकता है ना। तो यहाँ पे आप एज ए कंट्रोल क्या रिकमेंड कर सकते हो कि कस्टमर का साइन ले लो उस गुड्स नोट पे, सो गुड गुड डिस्पैच नोट्स पे, सो दैट कि ये एज ए प्रूफ काम करे, एविडेंस काम करे कि कस्टमर ने हाँ गुड रिसीव किया है, सो दैट दे विल नॉट डिनाई। ये आप लिख सकते हो। और क्या हो सकता है, और हाँ GDN को गुड डिस्पैच नोट को शुड बी मैच विद द ऑर्डर जो कस्टमर ने ऑर्डर किया था उससे मैच भी करना है, सो दैट इंश्योर कि कोई चीज़ छूट ना जाए, है कि नहीं, ये चीज़ इंश्योर करने के लिए। तो मैं इसका एक दो पॉइंट लिख देती हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। अब मैं बस एक जनरल कंट्रोल प्रोसीजर की बात कर रही हूँ, जैसे कि आपको लाइक सिचुएशन आएगा तो उसमें आप अप्लाई कर सको। तो मान लो कि अब क्या बोलते हैं वेयर हाउस डिपार्टमेंट में जो क्या बोलते हैं, मैं क्या बोला, हाँ, अब वो जो ऑर्डर रिसीव किया है वो सिक्वेंशियली नंबर होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सिक्वेंशियल। ये मान लो कि अब जैसे कि सिनारियो में बोला कि ऑर्डर सीक्वेंस नंबर में नहीं, मतलब सीक्वेंसली नंबर नहीं है, इन दैट केस यू कैन रिकमेंड कर सकते हो कि आप ऑर्डर को सीक्वेंसली नंबर कर, सो दैट कि हमारा कोई भी ऑर्डर छूटे ना, ये लिख सकते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, मैंने क्या बताया था, हाँ, द ऑर्डर शुड, ओके सो मैंने लिख दिया कि जो भी ऑर्डर जो भी हम लोग गुड लाइक डिस्पैच कर रहे हैं दैट शुड बी ऑथराइज्ड बाय ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हो सके तो आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम दे दो, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स हेड ऐसे करके लिख सकते हैं। उस अलॉन्ग विद द एविडेंस ऑफ ऑथराइजेशन एज ए सिग्नेचर, उसका साइन भी होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख सकते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ और क्लियर होगा कहाँ कहाँ इसका यूज़ करना है, इस टाइप से करके अभी फ़िलहाल समझने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सो दैट कि मैंने जो लाइक फेस किया क्वेश्चन करते वक्त, हल्का भी आइडिया नहीं था कैसे क्वेश्चन करे, लाइक कंट्रोल का, इट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी।
सो मैंने सोचा कि अगर इस टाइप के वीडियो हल्का मतलब लाइक बना दूँ तो शायद मे बी इट विल बी यूज़फुल फॉर स्टूडेंट, ये सोच के मैंने बनाया। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं परचेज सिस्टम या पेरोल सिस्टम का भी बना दूँगी, बट लेट्स सी व्हाट रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग फ्रॉम यू गाइज। सो इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेज इज इनवॉइसिंग। ओके, सो इनवॉइसिंग, अब सारे के सारे गुड डिस्पैच हो गए। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज है कि इनवॉइस राइज करना है। सो इनवॉइस शुड बी रेज्ड फॉर द ऑल द डिलीवरीज या फिर ऑल वॉट एवर द गुड जो हम लोग डिस्पैच किए हैं उसके रिलेटेड मेरे को इनवॉइस रेज करना है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि वहाँ पे एक करेक्ट अमाउंट हो। ठीक है, मतलब कस्टमर का डिटेल भी अच्छे से लिखा हो उस इनवॉइस में। ये सब चीज़ हम, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है रिगार्डिंग द इनवॉइसिंग। अब प्रोसीजर क्या क्या हम लोग लाइक अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि लाइक अब रेज के केस में है तो वहाँ पे हम लोग इनवॉइस को पहले मैच करेंगे गुड डिस्पैच नोट से, हो सके तो साइन ले ले और कोई भी सीनियर पर्सन का। ठीक है, और या फिर और एक मिनट, हाँ, ओके। तो ये सीनियर पर्सन का हम लोग एज अ एविडेंस ले लें, एज अ साइन वहाँ पे ले लेंगे उस इनवॉइस पे। और ये भी देखेंगे कि लाइक जो कस्टमर ऑर्डर किया था वही गुड तो डिस्पैच हुआ है ना। अब फालतू का तो गुड डिस्पैच नहीं हुआ है, वरना कस्टमर रख लेगा, पता भी नहीं चलेगा, है कि नहीं। और हाँ, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ भी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि जीडीएन बनाने वाला कोई और होना चाहिए, इनवॉइस प्रिपेयर करने वाला और होना चाहिए, वरना तो वो अपना मिस्टेक आइडेंटिफाई नहीं करेगा इफ़ इट विल बी डन बाय द सेम पर्सन, है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया इनवॉइसेस रिलेटेड। मैं कुछ पॉइंट को लिख देती हूँ, जैसे अब एक है इनवॉइसिंग रिलेटेड, बुक का ही लिखती हूँ, ऑल गुड्स dispatched ओके। सो ये तो बुक का ही मैंने लाइन पेस्ट किया। अब इसके रिलेटेड कोई कंट्रोल प्रोसीजर दैट वी शुड अडॉप्ट की यहाँ पे मिस्टेक ना हो, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑर्डर को एग्री करना है। ऑर्डर एग्री टू GTN and GTN agreed to invoice and invoice agreed to price list। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एवॉल्व चेक, मतलब जो ऊपर चेक हुआ है ये जो प्रोसेस शुड बी ओके। सो ये हमारा कंट्रोल प्रोसीजर हो गया यहाँ पे। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पे अब इनवॉइस भेजने के बाद वी हैव टू रिकॉर्ड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, है कि नहीं। सो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जैसे बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो भी वैलिड सेल्स है ओनली वही रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो सेल्स वो पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, और वो हम लोग एक अमाउंट जो लिखेंगे वो भी एक एक्यूरेटली रिकॉर्ड होना चाहिए। So all said, all only valid sales are recorded, correct amount are recorded, and sales should be recorded against the करेक्ट कस्टमर। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया।
ना इसके लिए हम लोग क्या क्या लाइक कंट्रोल कर सकते हैं टू इंश्योर दैट ये हमारा करेक्ट हो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि रिकॉन्साइल करेंगे, है कि नहीं, रिकॉन्साइल करेंगे डेब्ट लेजर को। उसके बाद सारे एंट्री को चेक करेंगे इनवॉइस का कि इट्स करेक्टली हैव बीन पोस्टेड टू द करेक्ट अकाउंट, ठीक है। और तो और हम लोग ये भी कर सकते हैं, अगर मान लो कि किसी कस्टमर का, ये तो हालांकि शायद कैश रिसीव में आएगा, उसमें एक्सप्लेन करती हूँ, फिलहाल यही होगा इसका। तो पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पे ओनली वैलिड सेल्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है। reconcile the अब तो रिकॉर्ड करने के बाद नाउ आवर लास्ट स्टेज इज़ टू रिसीव द कैश फ्रॉम द कस्टमर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कौन सा ड्यू कितने दिन का है, और इस उसी वैसे ही हम लोग कस्टमर को एज ए कंट्रोल प्रोसीजर में लिख सकते हो कि हम लोग स्टेटमेंट भेजेंगे कस्टमर को कि आपका ड्यूज इतना इतना है, रेगुलरली मंथली बेसिस ऐसे करके। अगर मान लो पेमेंट नहीं दे रहा है तो फॉलो अप प्रोसीजर भी हम लोग अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। ओवर ड्यू डेट ज़्यादा टाइम तक का हो गया है तो इफ़ केस इन केस ऑफ बैड डेट तो वी कैन राइट दो एज ए एक्सपेंस इन द PL। ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव है। और प्रोसीजर भी सेम है ऐसे रिलेटेड कि जो भी हम लोग कैश रिसीव करें इंश्योर इट इज़ करेक्ट एज पर द इन्वॉइस। इन्वॉइस में जो अमाउंट लिखा है वही हम लोग कैश में रिसीव कर रहे हैं। और हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कस्टमर को हम लोग ये जो डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं स्टेटमेंट भेजते हैं रेगुलरली बेसिस पे, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट भी इंश्योर करें, चेजअप करेंगे पेमेंट के लिए जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है रेगुलर बेसिस पे हम लोग कस्टमर। हाँ, यह मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भी रखेंगे सो दैट कि जो भी मान लो पेमेंट आ रहा है तो फ्रॉडलेंटली कोई रख ना ले अपने जेब में, ठीक है। और पेमेंट जो भी आ रहा है वो कस्टमर के अकाउंट में जाके लिखना है, ऐसा नहीं कि रॉन्ग अकाउंट में जाके लिख दे। तो दिस विल बी आवर कंट्रोल प्रोसीजर। तो ये है हमारे सेल सिस्टम के बारे में। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आएगा तो मुझे ज़रूर बताना। इफ़ इन केस वेरेवर यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ईमेल एंड एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन गिवन बिलो इन द बॉक्स। सो आप जब जहाँ भी आप कंफर्टेबल लगे आप मुझे बताना। इन केस आपको कि ये सिस्टम अच्छा लगा तो मैं परचेज सिस्टम का भी ऐसे ही वीडियो बना दूँगी जब क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड, तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। Okay, so thank you guys. Have a good day.